Hello, dear students. Welcome to the channel. Today, we are going to learn about personal financial planning. This subject is very important for MBA third semester students under SPPU syllabus. Personal financial planning helps in managing income, expenses, savings, investments, and risk in a structured manner. ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल क्लैरिटी, डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल ओरिएंटेशन डेवलप करने में हेल्प करता है, which is very useful for exams as well as real life. In this chapter, we will cover meaning and benefits of personal financial planning, misconceptions about personal financial planning, wealth management versus financial planning, risk tolerance and investor behavior, financial planning process, macroeconomic factors affecting financial planning across life stages, personal financial statement, financial planner, role and responsibilities and key financial planning terms. इन सभी टॉपिक्स को एग्जाम ओरिएंटेड सिंपल एंड कंसेप्चुअल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल मतलब है पैसा कमाना, खर्च करना, बचाना, इन्वेस्ट करना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना, सब कुछ एक प्रॉपर प्लान के साथ. पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को मैनेज करते हैं ताकि हम अपने लाइफ गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सके. सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग हमें क्लियर फाइनेंशियल गोल्स देता है. जब गोल क्लियर होता है, जैसे घर खरीदना, चिल्ड्रन एजुकेशन या रिटायरमेंट, तो पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं होता. दूसरा बेनिफिट है डिसिप्लिन सेविंग और इन्वेस्टिंग. प्लानिंग के साथ हम इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बच जाते हैं और रेगुलरली सेव और इन्वेस्ट कर पाते हैं. तीसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट. इंश्योरेंस और इमरजेंसी प्लानिंग के थ्रू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जैसे एक्सीडेंट या जॉब लॉस का इम्पैक्ट कम हो जाता है. चौथा बेनिफिट है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन. सही प्लानिंग से हम लीगली टैक्स सेव कर सकते हैं और अपनी इनकम का मैक्सिमम यूज कर पाते हैं. इसके साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आज और कल दोनों सिक्योर हो जाते हैं जिससे मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कंफर्टेबल रिटायरमेंट. जब रिटायरमेंट प्लानिंग टाइम पे होती है, किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसलिए कहा जाता है फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल. पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पैसों का प्लान नहीं, लाइफ को बेटर और स्ट्रेस फ्री बनाने का प्लान है. नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शंस अबाउट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग. Many people have wrong beliefs about personal financial planning, and because of these misconceptions, they delay or completely avoid planning. The first misconception is that financial planning is only for rich people. In reality, financial planning is important for everyone because आय चाहे कम हो या ज़्यादा, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी होता है. The second misconception is that financial planning is only about investments. Actually, investment is just one part. Financial planning also includes budgeting, insurance, tax planning, and retirement planning, which many people ignore. The third misconception is that financial planning is required only at old age. But the truth is, जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू होगी उतना फ्यूचर सिक्योर होगा and small savings can grow over time. Another common belief is that financial planning guarantees high returns. Planning does not give guarantees. Instead, ये रिस्क को मैनेज करने और लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. The last misconception is that financial planning is a one-time activity. In fact, financial planning is a continuous process because life goals, income and responsibilities time के साथ change होती रहती है.
So, the reality is clear. Personal financial planning is for everyone. It is multidimensional and it is a lifelong process. Next is wealth management versus financial planning. Let us first understand wealth management. Wealth management focuses on managing and growing existing wealth. It is mainly investment centric, where the emphasis is on portfolio management, returns, and asset allocation. Generally, wealth management services are suitable for high net worth individuals because ये तब यूजफुल होता है जब किसी के पास पहले से substantial wealth हो. Now, let us understand financial planning. Financial planning follows a goal based approach where the focus is on achieving life goals like buying a house, children's education, and retirement. It includes budgeting, insurance, tax planning, investments, and retirement planning. The most important point is that financial planning is suitable for all income groups बिकॉज हर व्यक्ति को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग प्लानिंग की ज़रूरत होती है. सो इन सिंपल वर्ड्स, wealth management is about managing wealth, while financial planning is about planning life goals. That is why it is always said financial planning comes first and wealth management comes later. Next is risk tolerance and investor behavior. रिस्क टॉलरेंस का सिंपल मीनिंग है इन्वेस्टर कितना रिस्क कंफर्टेबली एक्सेप्ट कर सकता है. ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, बल्कि आप मेंटली कितना रिस्क झेल सकते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. सबसे पहले एज को समझना ज़रूरी है. यंग एज में जनरली रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि टाइम अवेलेबल होता है लॉसेस रिकवर करने के लिए. लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आता है, रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है और सेफ्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. नेक्स्ट फैक्टर है इनकम स्टेबिलिटी. अगर आपकी इनकम स्टेबल है, रेगुलर सैलरी आ रही है, तो रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है. लेकिन अगर इनकम अनसर्टन है, फ्रीलांसिंग या बिजनेस पे डिपेंडेंट है, तो नेचुरली इंडिविजुअल बिकम्स मोर कॉशियस. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, तो इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है और इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट्स प्रिफर करता है. अब आता है पास्ट एक्सपीरियंस. अगर किसी इन्वेस्टर ने पहले हैवी लॉसेस देखे हैं, तो लॉस का डर उसके डिसीजंस को कंट्रोल करता है और अगर गुड रिटर्न्स मिले हैं तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. फाइनली, सबसे अंडररेटेड फैक्टर है इमोशनल कंफर्ट विथ रिस्क. मार्केट अप्स एंड डाउन सब देख सकते हैं, लेकिन हर कोई इमोशनली हैंडल नहीं कर पाता. कोई डेली प्राइस मूवमेंट देखकर पैनिक हो जाता है, कोई कामली वेट करता है. यस, मैथमेटिकल टूल्स, रिस्क प्रोफाइलिंग, क्वेश्चनेयर्स सब हेल्प करते हैं, बट एंड में फाइनल डिसीजन ह्यूमन बिहेवियर और माइंडसेट पे डिपेंड करता है. इसलिए बेस्ट फाइनेंशियल प्लान होता है जो फाइनेंशियली सही हो और इमोशनली कंफर्टेबल भी हो. बॉटम लाइन, रिस्क टॉलरेंस इक्वल्स कैलकुलेशन प्लस बिहेवियर प्लस माइंडसेट. अगर इन्वेस्टर इमोशनली कंफर्टेबल नहीं है, तो बेस्ट प्लान भी फेल हो सकता है. नेक्स्ट इज स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो आपको लाइफ गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है. इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. गोल्स सबसे पहले क्लियर करना होता है आपके गोल्स क्या हैं. शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे वेकेशन, मीडियम टर्म गोल्स जैसे हाउस परचेस और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट. गोल क्लियर नहीं होगा तो प्लानिंग भी क्लियर नहीं होगी. स्टेप 2, असेस करंट फाइनेंशियल पोजीशन. यहाँ हम एनालाइज करते हैं आज आप फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हो. इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज सब इवैल्यूएट किया जाता है. सिंपल वर्ड्स में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना, कंफर्ट चेक की जाती है.
एज, इनकम स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। साथ ही कंस्ट्रेंट्स जैसे टैक्स रूल्स, लिक्विडिटी नीड्स और टाइम होराइजन भी देखे जाते हैं। हर प्लान सबके लिए सेम नहीं होता। स्टेप 4, डेवलप फाइनेंशियल प्लान। अब एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान डिजाइन किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं, एसेट एलोकेशन डिसाइड होता है, इंश्योरेंस और टैक्स प्लानिंग इंक्लूड होती है। यहाँ स्ट्रैटेजी बनाई जाती है गोल्स अचीव करने के लिए। स्टेप 5, इम्प्लीमेंट द प्लान। सिर्फ प्लान बनाना इनफ नहीं होता, एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेना, एसआईपी सेट करना, ये सब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। प्लानिंग विदाउट एक्शन इज यूजलेस। स्टेप 6, रिव्यू एंड रिवाइज पीरियोडिकली। फाइनेंशियल प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। इनकम चेंज, गोल्स चेंज, मार्केट चेंज, इसलिए प्लान को रेगुलरली रिव्यू और अपडेट करना जरूरी होता है। समय के साथ प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है। कंक्लूजन, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस एक साइकिल से स्टार्ट होता है, गोल से, और रिपीट होता है रिव्यू से। जो लोग इस प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं वो ही फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस तक लिमिटेड नहीं होती। बड़ी इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ता है। इन्हीं को हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब है पैसों की परचेसिंग पावर कम हो जाना। अगर इन्फ्लेशन हाई है और रिटर्न्स लो हैं तो सेविंग्स की रियल वैल्यू गिर जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं लोन्स कितने महंगे होंगे और डिपॉजिट्स पर कितना रिटर्न मिलेगा। हाई इंटरेस्ट रेट्स में ईएमआईज बढ़ जाती है और लो इंटरेस्ट रेट्स में बोरोविंग इजी हो जाती है। इंटरेस्ट रेट चेंज डायरेक्टली बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट करता है। थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेसेस परफॉर्म अच्छा करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और इनकम्स इंक्रीज होती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम इनकम अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, इसलिए प्लानिंग ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। जॉब सिक्योरिटी, सैलरी ग्रोथ, लेऑफ्स, ये सब इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करते हैं। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट होने पर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंफर्टेबली प्लान कर पाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स पॉलिसीज की। गवर्नमेंट के टैक्स रूल्स, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, ये डिसाइड करते हैं कि आपका कितना इनकम एक्चुअली सेव और इन्वेस्ट हो सकता है। टैक्स प्लानिंग इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट होता है। अनदर मेजर फैक्टर है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, केवाईसी नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस, पेंशन रूल्स, ये सब प्लानिंग फ्रेमवर्क को कंट्रोल करते हैं। रूल्स चेंज होंगे तो प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। फाइनली फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस इन्वेस्टर के रिटर्न्स और रिस्क परसेप्शन दोनों को इन्फ्लुएंस करता है। मार्केट वॉलेटिलिटी के टाइम इमोशनली डिसिप्लिन्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। कंक्लूजन, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो बैकग्राउंड फोर्सेस है जो हर फाइनेंशियल प्लान को इम्पैक्ट करते हैं। सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग वही होती है जो इकोनॉमी के साथ एडजस्ट हो, रिजिड नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल हो। Now let's move next to financial planning across life stages. Financial planning is not a one time activity, it changes with every stage of life. Let's understand how priorities shift as we move from starting our career to retirement. Budgeting, emergency fund, and basic insurance. Budgeting helps in controlling expenses and saving regularly. बजटिंग का मतलब है अपनी इनकम को प्लान करना ताकि अननेसेसरी खर्च
अवॉइड हो सके। इमरजेंसी फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनकम इज अनसर्टन इन द इनिशियल ईयर्स। इमरजेंसी फंड हमें अचानक आने वाले खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस से बचाता है। बेसिक इंश्योरेंस लाइक हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस इज एसेंशियल। इंश्योरेंस फ्यूचर रिस्क को कवर करता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट स्टेज इज मिड करियर स्टेज। दिस इज द मोस्ट important earning phase of life. Here the focus shifts towards wealth creation, children education and asset purchase. Wealth creation means investing in mutual funds, equity और long term instruments. इस स्टेज पर रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर रहता है। Children education planning is necessary because education cost increases every year. पहले से प्लानिंग करने से फ्यूचर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। एसेट परचेज लाइक हाउस और व्हीकल इज कॉमन इन दिस स्टेज। एसेट स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स द प्री रिटायरमेंट स्टेज। एट दिस स्टेज income growth slows down and risk tolerance reduces. So the focus is on capital protection and retirement corpus. Capital protection means safeguarding accumulated wealth. इस स्टेज पर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए ताकि कैपिटल सुरक्षित रहे। रिटायरमेंट कॉर्पस इज द टोटल सेविंग्स रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। अगर कॉर्पस पर्याप्त नहीं होगा तो रिटायरमेंट लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल हो सकती है। फाइनली द रिटायरमेंट स्टेज। इन दिस स्टेज रेगुलर इनकम स्टॉप्स, so financial planning becomes very sensitive. The focus is on regular income, healthcare planning and low risk investments. Regular income can come from pension, annuity or fixed deposits. रिटायरमेंट में इनकम का रेगुलर फ्लो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हेल्थ केयर प्लानिंग इज क्रूशल ड्यू टू राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल कॉस्ट रिटायरमेंट स्टेज में सबसे बड़ा रिस्क होता है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रिफर्ड। इस स्टेज पर सेफ्टी रिटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। To conclude, financial planning across life stages ensures financial stability, security, and peace of mind throughout life. Proper planning at each stage helps in achieving long term financial goals successfully. Now, next is personal financial statement. A personal financial statement shows the overall financial position of an individual at a specific point of time. It helps in understanding whether a person is financially strong or weak. इन सिंपल वर्ड्स पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ को सिस्टमैटिकली शो करना। A personal financial statement mainly includes two important statements. First is net worth statement. Net worth statement shows the difference between assets and liabilities. Assets include cash, bank balance, investments, property, and other valuables. Liabilities include loans, credit card dues, and other financial obligations. Net worth equals assets minus liabilities. अगर एसेट ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज कम है तो नेटवर्थ पॉजिटिव होती है, जो गुड फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। Cash flow statement shows the difference between income and expenses over a period of time. Income includes salary, business income, interest, or rent. Expenses include household expenses, EMIs, insurance premium, and daily spending. कैश फ्लो इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो सरप्लस होता है, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। ए पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सिस्टमैटिकली लिस्टिंग एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इस स्टेटमेंट से व्यक्ति को अपने स्पेंडिंग पैटर्न, सेविंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग की क्लियर पिक्चर मिलती है। To conclude, a personal financial statement is an important tool for financial planning, decision making, and goal setting. It helps an individual in managing money effectively and achieving long term financial stability.
Now, next is financial planners' roles and responsibilities. A financial planner is a professional expert who helps individuals and families achieve their financial goals in a systematic and planned manner. इन सिंपल टर्म्स फाइनेंशियल प्लानर इज दैट पर्सन जो क्लाइंट की इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्क और गोल्स को समझकर सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है. लेट्स लुक एट देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. First role is financial analysis. Financial analysis involves evaluating the current financial position of the client. इस प्रोसेस में इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज और रिस्क प्रोफाइल का सिस्टमैटिक एवेल्युएशन किया जाता है. नेक्स्ट रोल इज गोल प्लानिंग. गोल प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स. गोल्स को टाइम होराइजन और इम्पोर्टेंस के बेसिस पर प्लान करना फाइनेंशियल सक्सेस के लिए नेसेसरी होता है. Next role is investment advice. A financial planner provides investment recommendations based on risk tolerance, return expectations, and investment period. क्लाइंट की रिस्क कैपेसिटी और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार सुटेबल इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना प्लानर का की रोल होता है. नेक्स्ट रोल इज टैक्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. Tax planning focuses on minimizing tax liability through legal methods, while retirement planning ensures financial stability after retirement. Retirement planning future income security create करता है और post retirement financial stress reduce करता है. Now let us understand the responsibilities of a financial planner. First responsibility is ethical conduct. A financial planner must act honestly and always prioritize the client's interest. Ethical behavior client trust और long term professional relationship build करता है. Next responsibility is confidentiality. All personal and financial information of the client must be kept secure. Client data protection professional responsibility का essential part होता है. Next responsibility is providing suitable advice. Advice should be appropriate to the client's financial condition, goals, and risk profile. Unsuitable advice financial loss or dissatisfaction cause कर सकती है. Last responsibility is regular review. Financial plans should be reviewed periodically to reflect changes in income, goals, or market conditions. रेगुलर रिव्यू फाइनेंशियल प्लान को रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाए रखता है. To conclude, a financial planner plays a crucial role in achieving financial security and long-term financial goals by offering professional guidance, ethical advice, and continuous financial support. Now, next is key financial planning terms. First is time value of money. Time value of money means present money is more valuable than future money. Reason is simple. Today's money can be invested and can earn returns. अगर आज 100 रुपये इन्वेस्ट किया जाए तो वह इंटरेस्ट अर्न करेगा, बट द सेम 100 रुपये रिसीव्ड आफ्टर फ्यू ईयर्स कैनॉट ग्रो फॉर दैट लॉस्ट टाइम. इसीलिए टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज बेस ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग and long-term financial planning decisions. Next is KYC, know your customer. KYC means identity verification required for financial transactions. Banks and financial institutions use KYC to confirm customer identity and prevent fraud. KYC में डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी होता है, like identity proof and address proof. Without KYC, account opening, mutual fund investment और इंश्योरेंस परचेस पॉसिबल नहीं होता. नेक्स्ट इज PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर. PAN is mandatory for tax and investments. It is used to track income, file income tax returns, and report high value financial transactions. PAN से financial activities link होती है, ensuring transparency and tax compliance. Mutual funds, shares and income tax filing PAN के बिना allowed नहीं है. Last is Aadhaar.
Aadhaar is a universal identity for banking and government services. It helps in quick verification and direct benefit transfers. Aadhaar biometric based identity है which makes authentication faster and more reliable. बैंक accounts, subsidies and government schemes में Aadhaar widely used होता है. In conclusion, these key financial planning terms help in understanding how money grows, how identity is verified, and how financial systems maintain transparency and security. So, dear students, this brings us to the end of today's session on personal financial planning. In this video, we understood the core concepts, definitions, and frameworks that are very important from MBA third semester SPPU exam point of view. ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग एंड लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल अवेयरनेस डेवलप करने में हेल्प करता है. Make sure to revise these concepts regularly. Focus on definitions, differences, processes, and keywords, and practice writing structured answers in the exam. If you found this session helpful, do like the video, subscribe to the channel, and share it with your classmates. For expert coaching and exam focused guidance in subjects like decision science, advanced financial management, managerial accounting, and direct taxation, you can contact me on the WhatsApp number shown on the screen. Thank you for watching, and we will continue with more important concepts in the next video.